Good afternoon, everyone. Please welcome Dr. Jasmine Bedi. She is academically a homeopathic physician turned into a startup enthusiast. From a very young age, she had a knack for business and startup. Learning it from her mother, she started learning and exploring things in the field of startup from her early days. At the age of 20, she founded her own startup by the name of hashtag online media, where she scaled the business to provide the services to domestic and international clients and ran the startup successfully for 2 years and took a happy exit from it in the year 2020 to start an even more interesting startup. By the end of the year 2020, she launched yet another startup by the name of the Food Airway with her business partner and helped to scale it across multiple cities of Punjab, establishing a name for the brand, taking a happy exit from operational roles of Food Airways. She is now working with yet another successful startup, AstroTalk, as an operational manager, adding value to wherever she goes by helping improving the processes and operations of the company she is a part of. So please welcome Dr. Jasmine Bedi for our expert session today. So shall we start, ma'am? Yes, please. Thank you so Yeah, much, Mohini. sure. Thank you. Okay, so can I present my screen or not? Hi, guys. Please allow me 2 minutes. I'll be starting within 2 minutes. First of all, thank you, Mohini. Thank you for welcoming me here, and thank you for giving me the opportunity to share my views and thoughts with you all. Thank you so much for that. Hi, guys. Thank you so much, Mohini, for being patient and for welcoming me here. And can I share my screen now? I cannot share my screen, maybe. Okay, anyways, I'll start with my introduction. Hi, guys. So I'm Jasmine, and I have been working from the past 8 years with startups and starting my own startup, working with another startups, and a lot of things around that. So today I've been invited here to speak on the topic on how to validate your ideas by testing them. So I'll be sharing my views and thoughts regarding the same, and if I could get to share my screen, that will be of great help. Thank you. I can share now. So So let's start with this. So I'm here to speak on the topic validating ideas through conceptual testing, and I have actually experienced this in my life also. Ki one of the startups that couldn't take off at the same speed as we wanted it to take off, क्योंकि हमने उसकी टेस्टिंग नहीं की थी, हमने कॉन्सेप्ट को इतना टेस्ट ही नहीं किया था. We didn't test it out really well in the market, and we had to witness the failures around it and the monetary loss that it brought to us. काफी सारी चीजें इसके around I have experienced it firsthand in my life in I would say recently only. So yes, I would be sharing my experience around that. But हम इससे पहले कि हम आगे बढ़े, so Mohini has already given you my introduction. I would really like to get to the topic that I'm here for. So आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझ लेते कि स्टार्टअप्स होते क्या है एंड हाउ दे आर नाउ बूमिंग थिंग कि आजकल हर किसी को एक शौक चढ़ रखा है कि मुझे भी अपना स्टार्टअप करना है. तो हर साल कितने स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं और कितने ही स्टार्टअप्स फेल होते हैं. तो दिस इज समथिंग विच इज testing your idea out is something which is required to help you boom your startup in the later phases. So पहले डिस्कस करते हैं कि स्टार्टअप होता क्या है. स्टार्टअप इज लाइक a business which is in a very initial phase. It could be in the ideation phase, it could be in the setting it up phase. तो बहुत initial phase में जो businesses होते हैं which have not even cracked their break even, they are not profitable or they could be profitable as well, those businesses are called startups. एंड इंडियन इकोनॉमी में इतने सारे स्टार्टअप्स, हर साल इतने स्टार्टअप्स, हजारों के काउंट में स्टार्टअप्स. इवन ड्यूरिंग द कोविड there were like almost 20,000 startups which were founded in the year of 2021. कि 2021 में इतने सारे स्टार्टअप्स आए. आप सोच लो कि यार
पूरी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी रो रही थी कि काम डाउन जा रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, शेयर मार्केट डाउन जा रही है. बट इन स्पेशली इन इंडिया द स्टार्टअप्स इकोनॉमी वाज बूमिंग अ लॉट. तो this is the progress that we can see, and the ease of doing business in India वो कैसे increase हुई है since 2016. पहले it was very complicated to do businesses, and with the schemes like Startup India, Digital India, the ease of doing business has increased a lot. India has jumped a lot in the ranks. When globally हम countries को rank करते हैं, तो उसमें इंडिया ने काफी अच्छा जंप लिया है in providing ease of business. I'll still not say कि हाँ हम पूरा perfection में पहुंच चुके हैं, but comparatively over the years, like since I started my journey and when I look at today, I have also personally experienced कि कितना ease अब आना शुरू हो चुका है. So let's discuss the stages of a startup. So in startup को यहाँ पे मैंने 5 stages में divide किया हुआ है. So what 5 stages are those? तो सबसे पहला स्टेज इज द आइडिएशन, कि आप आइडिया उस स्टार्टअप का आपको कैसे आता है. ठीक है, हम आगे इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि आइडिया सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्या हम प्रॉब्लम, कौन सी प्रॉब्लम को हम अपने स्टार्टअप के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं और उसको हम एक्चुअली में सॉल्व कर पा भी रहे हैं या नहीं, और क्या वो एक्चुअली में प्रॉब्लम का जो मार्केट साइज है, क्या बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर भी रहे हैं या नहीं. अब आप एक स्टार्टअप शुरू कर लो, ठीक है, अब वो आपको लगे कि एक प्रॉब्लम है, बट इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ मेजर चंक ऑफ द सोसाइटी. उसमें भी सिर्फ 1% का प्रॉब्लम है, और अगर आप वैसा स्टार्टअप आप शुरू कर लेते हैं और वो आप 1% बंदे की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, तो वो आपको मॉनिटरीली कितना बेनिफिट करेगा. अब उस 1% तक पहुंचना कितना ईजी है, कितना मुश्किल है, उस चीज को आइडेंटिफाई करना. तो ऐसे स्टार्टअप को शुरू करना विल नॉट बी वेरी बेनिफिशियल फॉर समबडी इन अ लॉन्गर रन. And then is the launch of the startup. How will you launch it? आपने आइडिया और उसकी प्रोसेसिंग, उसका सेटअप इतना अच्छा कर लिया कि नाउ यू आर ऑल सेट टू लॉन्च इट इन द मार्केट, एंड आप उससे बैक ऑफ नहीं करोगे कि हाँ हमने लॉन्च कर दिया. आर यू वेल प्रिपेयर? लेट्स से आई वाज इन फूड एयरवे. अगर फूड एयरवे को मैंने लॉन्च किया और मुझे पहले दिन 100 ऑर्डर्स आ जाते, लेकिन मेरी 100 ऑर्डर्स की तैयारी ना हो, मैं सिर्फ 10 ऑर्डर्स को केटर कर पाऊँ, so that is not a fit way to launch your startup. You should be more prepared for it before the launch. And then once you have launched it and you test it among your market and among your peers, तब आपको पता लगता है कि whether you have actually make a valid decision or not. क्या उसको मार्केट पसंद कर रही है, नहीं कर रही है, क्या चल रहा है, आपको उसका पता लगेगा. And if the market is actually liking it, then it's all about growing it and transitioning it into something way, way bigger. So as I said, idea is like the first milestone of starting up something of your own. तो इसमें सबसे पहली चीज तो हमें ये देखनी है कि यार क्या जो मेरा आइडिया है, इज इट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम और नॉट. से अभी आजकल शार्क टैंक कितना ज्यादा चल रहा है, कि हाँ शार्क टैंक में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो शार्क्स है वो भी क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इसका मार्केट साइज क्या है, क्या ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है या नहीं है. ठीक है, फॉर समबडी ब्रिंगिंग अ हेयर प्रोडक्ट, क्या वो एक्चुअली में जिस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, हेयर प्रोडक्ट है, तो क्या वो हेयर लॉस को एक्चुअल में एड्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके जैसे और स्टार्टअप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. आपने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, तो ऐसा तो नहीं है कि उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने वाले आप पहले हो. वैसे समझो स्टार्टअप्स और भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो यू शुड ऑल्सो फाइंड आउट कि हाँ आपका एक्चुअल पोटेंशियल क्या हो सकता है यहाँ पर. कि अगर आप ऑलरेडी मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो आपकी तरह सिमिलर कर रहे हैं, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स यू डिफरेंट. हाउ विल यू एक्चुअली अचीव द प्रॉब्लम दैट यू आर एड्रेसिंग. आप उसका सोल्यूशन कैसे अचीव करोगे. तो इन सब चीजों को कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. Let's say talking about food airway, we started food airway. Were there not any other brands like Zomato? There were Zomato था, Swiggy था, और Uber Eats था तब. तो इतने सारे brands होने के बाद भी why would somebody take a risk of
starting up something like that, something which is very common in the market. Were not there any cloud kitchens before? Yes, there were. But how would it make us different? हम कैसे अलग हो रहे हैं इस बाकी स्टार्टअप से, and how are we going to achieve what we are actually thinking of? Let's say I am thinking of achieving कि मेरी ऐप से हर रोज 10 लाख लोग ऑर्डर करेंगे, तो व्हाट इज द रोड मैप टू इट? एंड एम आई स्ट्रेट अप गोइंग टू मेक अ रोड मैप कि मैं 10 लाख के काउंट पे पहुंचूं, और आई एम गोइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू smaller milestones which are easier to achieve? Let's say first I'll aim ki ha, I can get 10,000 orders per day, 1,000 orders per day, 100 orders per day, 10 orders per day. I have to break it down into the milestones and then work on it. And then also, along while working on the milestones, I'll again need to change the roadmap. Maybe I'll identify some other problem which is coming in actually achieving the main target. So you have to, once when you're thinking of an idea, आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं उसी स्टेज पर. अगर हम आइडिएशन स्टेज पे अच्छे से अपने आइडिया को थॉरोली स्टडी कर लेते हैं ना कि यार हाँ ये चीज को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ से हम ये ऐसे करेंगे, एंड यू ऑल्सो स्टिक टू द रोड मैप. You need not to get lost in the distractions here and there. You need to stick to it what you have thought of कि हाँ ये चीज को मैं ऐसे एड्रेस करूंगा और इससे मैं ऐसे आगे बढ़कर कैसे सॉल्व करूंगा प्रॉब्लम को. इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन दैट, then only work on proceeding further with it. If you're not confident about it, don't proceed with it. उस पे जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए. ऑल्सो स्टडी योर कॉम्पिटिटर्स थॉरली कि वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, क्या वो, और अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, दिस मीन्स द प्रॉब्लम हैज नेवर बीन एड्रेस्ड बिफोर. सो इज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम जिसको हमें एड्रेस करना भी चाहिए या नहीं? जैसे मैंने पहले कहा, अगर वो सिर्फ 1% दुनिया की प्रॉब्लम है, तो उस 1% दुनिया की प्रॉब्लम को क्या हमें एड्रेस करना भी है या नहीं? दैट इज ऑल्सो अ डिसीजन टू मेक. सो this is the major milestone that you need to achieve successfully while thinking or planning of starting something of your own. Now, this is concept testing, validating our idea. The main gist of this seminar that we are actually doing it for. So, what is actually concept testing and how do we do it? How we proceed, how we actually achieve the results that we are looking forward to. So, it is something where we are trying to understand a detailed perspective of the product from a customer's point of view. Is the customer actually liking it or not? If the customer is not going to like the product, they're not going to buy it. And if they're not going to buy it, who are you making the product for? So, testing or validating your idea. The sample survey is with छोटे छोटे steps लेकर अगर आप अपने idea को validate कर लेते हो, तो it is going to help you out a lot in actually making your startup successful. So जरूरत क्यों है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ना चाहिए क्यों, कंसेप्ट टेस्टिंग करनी ही क्यों है. ऐसा भी क्या हो गया, मैंने सोच लिया, आज मुझे रात को एक आइडिया आया कि हाँ कल से उठ के मुझे ये करना है, तो कर लेते हैं ना, मार्केट में चल जाएगा. मैं बहुत श्योर हूँ कि हाँ, कि मैं अगर आज स्टार्टअप अपना शुरू करूंगी, मैं 1 साल में इसको यूनिकॉर्न बना लूंगी, मैं इतने करोड़ों बिलियन डॉलर छाप लूंगी. लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही सब लोग सोच रहे हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं चलता. तो हमें इस वजह से कॉन्सेप्ट को टेस्ट करना जरूरी है, ताकि हम अपने यूजर का, जो एंड कस्टमर है, उसका माइंडसेट समझ पाए और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या, उस प्रॉब्लम को फेस करने में क्या इशू हो रहा है, उसको एड्रेस करके हम एक एक्चुअल प्रोडक्ट बना पाए. तो दिस विल हेल्प यू टू प्रायोरिटाइज. लेट्स से यू आर मेकिंग समथिंग, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग अ फूड एयरवे. तो अब मेरा जो था, क्या कह सकते हैं, यूएसपी जो था वो ये था अराउंड हाइजीन, around letting people know कि you are going to get the most hygienic food here. But अब अगर मैं हाइजीनिक फूड के नाम पर लुधियाना में, पंजाब में, where people are more into नॉर्थ इंडियन फूड, में उनको उत्तपम, पोहा, ऐसी चीजें बेचने लगूंगी, तो मेरा मार्केट साइज तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ऑर्डर वैल्यू ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगी. तो इसमें हम क्या करेंगे? ठीक है, तो क्या मुझे उनकी, so do I not need to study what kind of food is Ludhiana looking forward to? उनको क्या चाहिए, कैसा लोगों को पसंद आ रहा है? हम ना मैकडोनल्ड्स में भी अगर आप देखोगे, मैकडोनल्ड्स है, केएफसी, ऐसे जो बड़े ब्रांड्स हैं, फूड ब्रांड्स हैं, तो you'll see they have made दाल मखनी बर्गर,
tandoori paneer pizza and this dosa burger, all these kind of things with Indian fusions. Do you think the dosa burger is being sold out in UK, US? No, it is not. There people are loving something else. There people are loving different sorts of non-vegetarian food. बट यहाँ पर लोग अपना फूड चाहते हैं खाना. तो नो मैटर मैकडोनल्ड्स कितना मर्जी अच्छा हो, अगर वो यहाँ के लोगों का टेस्ट सर्व नहीं करेगा तो मैकडोनल्ड्स भी नहीं चल पाएगा. So this is where when you test your concept among the peers, among your market, तब आपको पता लगता है कि यार लोगों को एक्चुअली में क्या पसंद आएगा और क्या पसंद नहीं आएगा. एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू आउट कि अगर आपके पास अपने आइडिया को लेकर आगे 10 और पॉइंटर्स हैं, तो उन पॉइंट्स में से आपको पहले किस पॉइंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, पहले किसे लॉन्च करना चाहिए. दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट. एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपका मार्केट में कितना पोटेंशियल है, कितने लोग एक्चुअली में आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, कितने लोग आपका प्रोडक्ट पे कितना पैसा स्पेंड करना पसंद करेंगे, तो आपके प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो कितने बजट में होना चाहिए. बीट योर प्रोडक्ट और बीट सर्विस, बीट एनीथिंग, whatever you're going to sell out via your startup, it will help you to understand your customer better if you actually test out the product or test out your idea beforehand, before launching it. And of course, the major thing, I would say, the major thing that it will help you out with will be, it will, startups are always, हम बहुत सुनते हैं startups के around funding, ठीक है. तो अगर आपका सब कुछ thoroughly researched होगा ना, it will help you to save the budget that you already have. ठीक है, आपका पैसा कहीं फालतू में वेस्ट नहीं होगा. और अगर आपको फंडिंग मिल रही है तो यू विल ऑल्सो नो वेयर टू इन्वेस्ट द मनी इन द राइट वे. ठीक है, पैसे को राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमें राइट रिजल्ट्स देगा. इफ यू आर इन्वेस्टिंग द मनी इन द रॉन्ग डायरेक्शन, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस आउट इन एनी वे. सो दिस इज what the concept testing will help you out with. And why is it important? In the younger days when I was like starting up with things, I didn't even have any idea कि यार वर्किंग कैपिटल भी कुछ होता है, कि हाँ काम को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए. तो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट स्टार्टअप इन जस्ट 10 days. मैंने 8th of September को सोचा कि आई एम गोइंग टू डू दिस because because I was working as a freelancer and I wanted to make it into a full-fledged company and a startup. So in 10 days I decided it and I started with it without any second thought कि यार इसको चलाऊंगी कैसे, इसको सर्वाइवल कैसे रखेगा. ठीक है, तो वो चीजें moving forward, like down the line, 6 months later, it kind of started to show up. Now, how do you manage it? How do you sustain your business? Because you didn't plan how are you going to achieve your targets. You didn't plan कि तुम्हारा actually जो product या service है वो कितना लंबा, किस किस को तुम target कर सकते हो, कैसे चलाओगे. ये चीजें initially सोची नहीं थी. तो business को चलाने के लिए उसका प्रोसेस, उसका एक रोड मैप बनाना कितना जरूरी है ये सोचा ही नहीं था. और जो ना सोचने की वजह से काफी गलतियां करी. सो उन गलतियों से जो सीखा वो फिर सेकंड स्टार्टअप में अप्लाई किया. और फिर ऐसा नहीं है कि आज भी गलतियां नहीं करते, आज भी गलतियां होती है, बट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. और अपनी गलतियों से सीखना तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दूसरे की गलतियों से सीखना और भी अच्छा है. तो अगर कोई और गलतियां कर चुका है, जैसे कि अगर मैंने गलतियां कर ली और अब मैंने रियलाइज कर लिया यार नहीं, whenever starting something you need to plan it thoroughly, you need to study your market thoroughly, you need to study your competitors thoroughly. तो इन गलतियों से आप सीख सकते हो कि यार हाँ, अगर हम अब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो what do we need to do before we go ahead with it. And of course it's going to help you gain confidence, क्योंकि अगर आपको पता होगा, आपको मार्केट में अपनी कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको पता होगा कि यार हाँ, where I'm going to invest, how I'm going to get my money back, and how I'm going to make my startup profitable. It will help you a lot in gaining all that confidence that is required when you actually go into the field. So the process of concept testing. ठीक है, पहले तो जब हम किसी भी उसको टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम उसका पर्पस रियलाइज करने की, यार हाँ कि क्या पर्पस है, इसको मैं क्यों टेस्ट करना चाह रहा हूँ. लेट्स से आई वांट टू टेस्ट इफ what kind of menu people are going to like in Ludhiana, right? And I'm going to the people are going to like in Punjab. Let's say not even Punjab. I am a Punjabi and I want to understand what kind of food the people in South will like. So I need to study that and how can I bring in some innovation regarding to it. तो पहले तो मुझे अपना टेस्ट का पर्पस रियलाइज करना है कि क्या मुझे वही सिमिलर सा मेन्यू उठाना है,
जो लोग सर्व कर रहा है, और आई वांट टू ब्रिंग इन सम इनोवेशन. नाउ आई वांट टू ब्रिंग इन सम इनोवेशन विद माय मेन्यू. So I would like to understand what is it that people are not getting right now in their market and they would want to have it. So this is my purpose. Now I'll select a survey of population survey. अब मतलब मान लो कि कौन बेस्ट यूजर है कि जिसको मुझे सर्वे करना चाहिए. अब अगर मैं किसी वेजिटेरियन को जाके पूछूंगी कि व्हाट काइंड ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड वी शुड सेल इन द मार्केट, that is not going to help me, that is not going to serve the purpose that I'm looking forward to. So it is not going to help. अगर मैं किसी अगर हम मैं अपने दादाजी को दादी को पूछूंगी कि आप बताओ कि कैसे एंड्रॉयड फोन में और कैसे फीचर्स आने चाहिए, तो वो क्या बताएंगे. उनको उनके जमाने में उनके लिए एक फोन देखना, उन्होंने जहां से देखा हुआ है, तो वो जहां से उन्होंने फोन की जर्नी देखी है और अब तक जहां आज के, उनके लिए तो वही बहुत बड़ी बात है. लेकिन हम लोगों ने जहां से फोन्स देखने शुरू किए हैं और अब जो आजकल फोन्स चल रहे हैं, और हम एंड्रॉयड फोन को चलाना, उसकी वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स देयर कैन बी. वी अंडरस्टैंड इट कि हाँ ठीक है, इसमें हम अगर फोन में हमारे ये भी एक फीचर आ जाए तो बढ़िया रहेगा. लेकिन अगर आई सर्वे 60+ पीपल, 70+ पीपल फॉर फोन्स, इट विल नॉट हेल्प मी आउट, राइट. सर्वे का फॉर्मेट क्या होना चाहिए. मतलब देखो, सर्विस इतने इंपॉर्टेंट है ना. अगर आप जाओगे यूट्यूब पे भी एड्स आती हैं कि हाँ आपने कभी सनसिल्क का एड देखा है पहले, कभी आपने डव का एड देखा है, आपने पहले ऐसा कुछ किया. यूट्यूब भी सर्विस लेता रहता है टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव इटसेल्फ. इतना बड़ा गूगल, इतना बड़ा ब्रांड होने के बाद भी आज तक सर्विस लेता है, एंड इट हेल्प्स अदर ब्रांड्स टू टेक कंडक्ट सर्विस थ्रू इट. तो सोचो कि सर्वे और सर्वे का फॉर्मेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज है इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट. और उस सर्वे से क्या आप अपना आइडिया कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बंदे को समझ ही ना आए कि यार ये पूछना क्या चाह रहा है, तो वो उसके लिए सर्वे देगा कैसे. सो दैट इज योर आइडिया शुड ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली. एंड देन मेजर द रिस्पॉन्स. देखो कि हाँ यार लोगों ने क्या फीडबैक दिया है, कितना उन्हें पसंद आया, कितना नहीं पसंद आया, और फिर रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके, लेट्स से किसी को 90% people voted that there should be something like dosa on top of a pizza. So if 90% people are looking forward to it, so that is something that should go on your menu. That is something you should not skip it. So results को interpret करके, और some people like only 5% people voted that they want idli in a menu. So you would not keep idli in a menu क्योंकि वो 5% लोगों ने वोट किया. मे बी सम टाइम लेटर, हाँ हमारे पास बहुत बजट है, बट अभी के लिए प्रायोरिटी क्या रहेगा कि डोसा और पिज्जा, जिसको मैक्सिमम लोगों ने वोट किया है. तो दैट इज हाउ यू विल इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स कि हाँ आप क्या कर सकते हो, क्या आपके बजट में बैठा है. लेट्स से 90% people voted it, but this is going to be crazy expensive for you and your budget is not allowing it. You can pick up the second best thing, like 80% people voted for something else. You can go ahead with that. So it will allow you to understand what fits in your budget and what fits your market, and then you can go ahead with it, right. And of course it will, you know, show you results. So this is something, you know, फोर्ड के जो फाउंडर है उन्होंने कहा था कि if I had asked people what they wanted, they would have said faster horses. ठीक है, मतलब कि अगर मैंने लोगों से पूछा होता कि उनको क्या चाहिए, तो लोग गाड़ियां नहीं बोलते, लोग बोलते कि हाँ ऐसा घोड़ा दे दो जो और भी तेज हो. क्योंकि तब लोग, उस जमाने में लोग घोड़ों से ट्रैवल करते थे, तो लोग सोच ही नहीं सकते थे सब. सो अगर ये लोगों से पूछते तो लोग इनको कहते तेज घोड़े दे दो. तो ये आप किन से पूछ रहे हो ना, ये भी बहुत मैटर करता है. अगर आप कैसे लोगों से पूछ रहे हो, आप राइट काइंड ऑफ मार्केट से पूछ भी रहे हो या नहीं. अगर आप किसी मतलब वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर आप बुजुर्गों से पूछोगे कि उनको कैसा फोन चाहिए, तो लाइक माय दादी इज स्टिल वेरी हैप्पी, शी इज नॉट हैप्पी यूजिंग एन एंड्रॉइड फोन. शी इज यार मुझे नहीं पता लगता ये कैसे यूज करना है, कहीं पे भी कुछ भी टच हो जाता है. तो उनके अकॉर्डिंग आज भी फोन्स में बटन होने चाहिए, ठीक है. और मेरे अकॉर्डिंग लाइक I when I was living in Chandigarh, so there I had a plasma TV, this LED TV, and while using it, I got so frustrated with the remote. It was not working. I just went to the screen and it just out of a reflex, I touched the screen. TV screen को touch करके मैं हिला मतलब यूज करने लगी. तो जबकि वो टच स्क्रीन टीवी था भी नहीं. तो अगर मेरे से पूछोगे तो यार मुझे हर चीज टच स्क्रीन चाहिए कि हाँ टीवी भी टच स्क्रीन हो जाए कि मैं रिमोट नहीं यूज कर सकती कि हाँ जाओ टच किया और हो गया, इशू सॉल्व. लेकिन उनके लिए क्या है कि हाँ उनको फोन में भी बटन चाहिए. तो अगर हम
इररेलेवेंट ऑडियंस से पूछेंगे ना कि आपको क्या चाहिए, तो हम इररेलेवेंट रिजल्ट्स पर ही पहुंचेंगे। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई आवर ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छे से, ठीक है, कि ये ना हो कि यार आपने नाइन इतने 1000 लोगों का सर्वे किया और लेकिन वो 1000 लोग आपके प्रोडक्ट के साथ रेलिवेंट थे ही नहीं, दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी वे। सो आस्क द राइट काइंड ऑफ पीपल, ठीक है। अब हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन इज द राइट काइंड ऑफ पर्सन फॉर मी और नॉट, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, आप स्क्रीनिंग कर सकते हो अपने कस्टमर्स की, यार हाँ मैं जिनसे सर्वे ले रहा हूँ उनके पहले कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं कि यू नो लेट्स से इफ आई like I was discussing about phones, तो I can ask the people what kind of phone are you using currently. अगर वो आज ही अभी टच स्क्रीन फोन यूज कर रहा, अभी एंड्रॉइड नहीं यूज कर रहा, तो हाउ आर दे गोइंग टू हेल्प आउट विद इम्प्रूविंग एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड फोन, राइट। एंड आई एम, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल दिया स्क्रीनिंग में, आई नो कुकिंग, आई डू नॉट नो कुकिंग, सो ऐसे कुछ इजी स्क्रीनिंग क्वेश्चंस which could help you out to screen out, filter out कि this is the right audience for you and this is not the right audience for you, to help you actually validate your idea in real, like कि हाँ ये नहीं कि हाँ किसी भी रैंडम बंदे से सर्वे फिल करवा लिया, कॉलेज में 10-15 लोगों से फिल करवा लिया और होता है कि हाँ बहुत बढ़िया, मेरा तो 15 लोगों ने बोल दिया कि बहुत अच्छा आइडिया, अब जाके मैं इसको शुरू कर रहा हूँ, तो वो नहीं करना है हमें, ठीक है। और देन आस्क कि हाँ अगर उनको हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो प्रोडक्ट आप ला रहे हो उसके बारे में और रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछो कि हाँ वुड यू लाइक टू हैव व्हाट विल बी योर एक्सपीरियंस अगर आपको 200 और पिज्जा मिलता है एक ही साथ, क्या आप उसको पसंद करोगे, नहीं करोगे, आपको अच्छा लग रहा है सुनने में, नहीं लग रहा है सुनने में, क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है ये और बेटर कैसे हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्ट को वैलिडेट करने में, मतलब ये जानने में कि एक्चुअली में ये कंसेप्ट होना भी चाहिए मार्केट में या नहीं, ये जानने में हेल्प करे। स्क्रीनिंग के बाद हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए। एंड देन देखो, लोग आकर ना ज्ञान देने का शौक सबको होता है। अब मैं भी आई हूँ, मैं भी ज्ञान दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान हर कोई दे सकता है, बट उसको उसको एक्चुअली में अप्लाई करना, उसका समझना कि यार हाँ वो रियल लाइफ में कैसे यूज होगा, ये हर कोई नहीं कर सकता, ठीक। तो अब यहाँ पे भी वही चीज है, आपने पूछ तो लिया, लोग आपके कॉन्सेप्ट को वैलिडेट जरूर कर देंगे, लेकिन खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे ये नहीं पता। तो हमें उसका परचेज इंटेंट भी समझना है। कोई आपको आके बोले कि अच्छा ये शुरू करने लगे हो, इसमें ये भी कर दो, इसमें 4 चीजें और भी जोड़ दो, 5 ये भी रख लो, एंड देन व्हेन यू आस्क देम दैट वुड यू बाय इट, and they'll be like, no, I won't buy it, why would I waste my money on it? So if you would not waste your money on it, why are you suggesting कि हाँ आप ये चीजें कर लो। तो आपको परचेज इंटेंट भी समझना है मार्केट का, सिर्फ ये नहीं कि हाँ यूजर से ज्ञान लिया कि अच्छा ठीक है हम इसको खरीदे, हाँ इसको ऐसे बढ़िया कर लो, इसको ऐसे बढ़िया कर लो, और देखा कि हाँ बढ़िया तो हमने बहुत कर दिया लेकिन यूजर खरीदना नहीं चाहता, तो उसका भी कोई खास फायदा होगा नहीं। तो परचेज इंटेंट भी समझना बहुत जरूरी है। एंड देन अगेन मार्केट रिसर्च, मार्केट रिसर्च तो कभी भी बंद मत करो। आइडिएशन से लेके ग्रोथ स्टेज तक, इवन व्हेन यू हैव ग्रोन फुल्ली, ऑलवेज नो योर मार्केट, कि हाँ आपकी मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट रिसर्च क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है, कॉम्पिटिटर एक्चुअली में कर क्या रहा है, और क्या आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए इस चीज पे कि हाँ। और कॉम्पिटिटर से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे लोग अपसेट है, लाइक if you want to start a food delivery brand, what will I do? Like what I did was मैंने जाकर सबसे critical reviews of other food delivery brands पढ़ना शुरू किया कि हाँ इनकी इनको लोग किस बात पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, what is the thing that उनकी UI में, उनकी ऐप के लेआउट में क्या चीज ऐसी है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, ठीक है। वो सब चीजें पढ़ने के बाद we implemented something कि हाँ okay we can do this, right? एंड देन यू कैन एंड इट विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ पे आप लोगों से और उनके आइडियाज के बारे में पूछ सकते हो कि व्हाट यू नो दे थिंक ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट डज इट रिमाइंड ऑफ, कि हाँ उनको देख के क्या याद आता है और कैसे इसको वो अगर करते तो कैसे और इम्प्रूव करते, ठीक है। तो अब करना कैसे है, बता तो दिया कि ये करना है, पर करना भी कैसे है, right? So there are a lot of formats of conducting your surveys, especially you guys are in college right now. You can network through so many of people around you. You can conduct in-depth interviews. You can have in-depth conversations with people. You can conduct focus groups where you can invite other people and hear about what are their ideas on it. And field surveys, of course, the most used method is
फील्ड सर्विस, हिंदुस्तान, HUL, हिंदुस्तान यूनाइटेड लिवर आज तक फील्ड सर्विस करती है कि अलग अलग शहरों में जाके, रिमोट सिटीज में जाके वो आज भी समझती है कि उनकी ऑडियंस को क्या चाहिए। ठीक है, एक कोलगेट वो 100 रुपए का भी बना रहे हैं और वो 10 रुपए वाला भी बना रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 रुपए वाला क्यों बना रहे हैं, 20 का क्यों नहीं बना रहे हैं? इंडियंस को हर चीज 5-10, रिमोट सिटीज में 5-10 रुपए में चाहिए, तो वो ऐसा क्यों बना रहे हैं? तो इन चीजों पे उन्होंने काफी सर्विस करके फिर अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अब आपको जब अपना आइडिया बताना है, लोगों को सर्वे कर रहे हो, आइडिया बताओगे भी तो सही, यार इस चीज के लिए सर्वे कर रहे हैं, ये मेरा आइडिया, तो कैसे बताना चाहिए? अब क्या आप एक डोसा पिज्जा लेके जाओगे बना कर कि हाँ ये लीजिए, ये खा के देखिए, तो ऐसे कितने पिज्जाज बनाओगे? तो ऐसा नहीं कर सकते ना, इट्स नॉट फिजिबल, पॉसिबल नहीं है ना कि इतने लोगों का आप सर्वे लोगे और उनको आप सबको खिलाओगे थोड़ी। तो वो ना पॉसिबल है, और मॉनेटरीली भी इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। So what can you do? You can make prototypes, you can make simulations, storyboards, pictures, videos, क्या concept होगा उसका, डॉक्यूमेंट बना सकते हो। तो आजकल तो इतना सब कुछ हो चुका है डिजिटली, यू कैन यूज एनी ऑफ इट, बट when you use it, you should know कि it is actually presenting your idea in the right way as you want people to know it. So that is what you need to take care of the most. अब ये देखो, इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि 4 डिजाइन बनाए हैं। ठीक है, क्यों बनाए हैं? एक डिजाइन बनाते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि कैसा बना, तो बट प्रिंटिंग में इतनी कॉस्टिंग जाती है उनकी। तो है, दे मेड 4 डिजाइन एंड देन दे डिस्कस्ड ऑन इट कि कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। उसके बाद दे विल एक्चुअली प्रिंट इट एंड ब्रिंग इट इनटू existence. So this is, an overview of why conceptual testing is very important, and it's like the utmost importance in the initial phases of a startup. And here were my views on it, and thank you so much for having me here and letting me share my views with all of you. Thank you guys, thank you so much. Jasmine, are you there? Yes, I'm here. Oh, thank you so much for the wonderful session. Thank you. Hope so our students will encourage for your startup ideas, and for youth you are such a motivation, and I'll be sharing your award of appreciation via email. Thank you so much for sparing your valuable time for our students. Thank you so much, Apurva. Thank you so much for having me here. Okay, thank you. Thank you.